अपने बेंच पे खड़ी हो गई, उसकी तरफ मुड़ी और उसका कॉलर पकड़ लिया। 7th स्टैंडर्ड की जानवी ने ये कांड कर दिया। हे हाय, दिस इज जानवी मोर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो कल था मेरा बर्थडे एंड नाउ आई एम टर्न इंटर्ड इनटू 20s। वेल, टीनेज हो गया खत्म, बट सोच रही थी कि सम ऑफ माई मिस्टेक्स या फिर लर्निंग्स या फिर जो चीज़ें होती है टीनेज में समझ आनी चाहिए। अगर मैं अपने यंगर सेल्फ को बताती कि ये कर, ये मत कर, सो माई लाइफ विल बी मोर हैप्पियर एंड मोर कॉन्फिडेंट। सो मेरे छोटे भाई बहनों के लिए ये वीडियो है। लाइक अगर हम 20s वाले भी देख ले तो हमें भी कुछ लाइक नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। So these are the 5 things that I will going to tell you. The number 1 is physical changes or the physical appearance. Well, most of the people insecure about this thing. Let know you from my example. I was healthier from my birth. I'm still healthier with this chubby cheek and the rounder face. This is one of the biggest insecurity that I have from when I came to know that what is the value of looks, that how it matter in real life. So my dear friends, as we grown up in our teenage years, some of people get some acne, pimples, or weight gain or weight loss. Much more thing happen in our body. So this is natural. This is okay. There is no issue or like very different thing कि आपको worry करने की चीज हो. Somehow like social media or Instagram has that beauty standard कि you must have slim body, or if you are boy so you must have the muscular body or crystal clear skin with the sharp jawline and all. But my dear friends, you don't have to worry about it. आप अभी छोटे हो and this is the learning phase, growing phase. सीखोगे, गिरोगे, आगे बढ़ोगे. No worry about it. Confident that what you have. Like I'm giving my example. I was a short-heighted with a healthier body, rounder face, chubby cheeks, and everything. And I am also like you, having lot of insecurities. But as I grown up, I learned that this is not the thing. This is the natural thing. Everyone is unique. Everyone is special. Like, give you example. If you try to fit a square thing in a diamond shape or like star shape mold, is it going to be fit? No, because it's a different, it has a different texture or different shape. So how can you fit this into this? So you don't have to worry about it. Just work on yourself, be confident that what you have, and go ahead. Second thing, mental health or the mental stability. Well, this is the most overrated, or it must be overrated, because nowadays children's no not the children, they are the younger one, think a lot about the little thing. इतने से भी चीज हो जाए ना तो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं. मेरे एक स्कूल के इंसिडेंट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि मेरे बारे में क्या होता. मैंने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया था. अभी लोग छोटे छोटे चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते, बच्चे बहुत ओवर थिंक करते. मेरा क्या होता, मेरा पेपर चल रहा था. आई वॉज सिटिंग इन एग्जाम हॉल. आई एम सिटिंग हियर एंड बैक ऑफ माई देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ बॉय सिटिंग and he is also writing a paper. We both are writing a paper. Okay, everything is going well, but in middle of the paper he's continuously poking his pencil and trying to like मेरी तरफ ध्यान दे, मुझे आंसर बता. बट आई वॉज वेरी इरिटेटेड गाय एट दैट मोमेंट. मैं अपना पेपर लिख रही हूँ और मुझे परेशान कर रहा है. सो मैंने एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, 3 बार इग्नोर किया. चौथी बार जो मुझे गुस्सा आया है ना, मैंने क्या किया होगा, अपने बेंच पे खड़ी हो गई, उसकी तरफ मुड़ी और उसका कॉलर पकड़ लिया. 7th स्टैंडर्ड की जानवी ने ये कांड कर दिया. एवरीवन लुकिंग एट मी. 70 बच्चे थे हमारे ब्लॉग में एट अ मोमेंट एंड टीचर भी थे. So teacher came to me and Shant, Gadadari Bhim Shant. So this is big jamala that I made at that moment. और उसके बाद everyone laughing at me and after that मैं अपने घर आई और 2-3 दिन like स्कूल भी जा रही थी. But I overthink lot about it because वो चीज़ भी बड़ी थी and must be thinking. But अब जब मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती कि like क्या कर दिया था मैंने. एंड तब हम बच्चे थे ना, कर भी कह सकते थे. सो दिस इज नॉट ए बिग डील. चीज़ें होती है बट डोंट टेक इट वेरी बिग, बिकॉज लाइफ इज वेरी वेरी बिग. और किसी ने कुछ चीज़ बोल दी या फिर हमने किसी को कुछ चीज़ बोल दी, नॉर्मल.
अगर आपसे गलती होगी तो सॉरी बोल दो, अगर किसी ने आपको गलती दी है तो नादान समझ के माफ कर दो, या फिर लाइक बहुत बड़ी इशू नहीं करना, या फिर ओवर थिंक नहीं करना। द थर्ड वन इज social anxiety. My god, this is the biggest thing, like biggest ever. सबको लगता है जब जब हम टीनेज में होते हैं तो हमें लगता है कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं, यहाँ से कैमरा, वहाँ से कैमरा, वहाँ से कैमरा, ऐसा हमें लगने लगता है कि अगर हम छोटी सी चीज़ भी करें ना, कि बॉटल उठा के पानी भी पीने लग जाए, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि पानी यहाँ वहाँ गिर जाए, या फिर बॉटल मेरी अच्छी दिख रही नहीं, मैं अच्छी दिख रही हूँ नहीं। इस छोटी छोटी चीज़ों से हम इतनी ज़्यादा सोशल एंजाइटी बिल्ड हो जाती है। बट गाइज, दिस इज़ वेरी लाइक नॉर्मल थिंग, डोंट ओवर थिंक अबाउट इट। जो चीज़ें कर रहे हो कॉन्फिडेंटली करो। अगर आप पब्लिक के सामने जाके बात कर रहे हो, या फिर इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ स्टेज और एनी डिबेट कॉम्पिटिशन, बी कॉन्फिडेंट, और जो हमें पता है बोलते जाओ। नो मैटर वॉट, हो जाएगा, देखा जाएगा, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। Everything will be going fine, nothing to worry about. So fourth is relationship issue. हाँ भाई, relationship issue यही टाइम होता है जब हमारे मॉम डैड, हमारे मम्मी पापा के साथ बननी खत्म हो जाती है। लाइक जब हम 8-9 ईयर के होते हैं तो स्कूल से रिटर्न आते हैं मम्मी के पास, मम्मी आज ये हुआ, मम्मी आज मैंने ऐसा किया वैसा किया, पापा के पास जाके ये हुआ वो हुआ। बट एज वी ग्रोन अप हमें लगती है प्राइवेसी, हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, लाइक वो लोग हम जज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मम्मी पापा के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम बहस इस एज में होती है, और हमें समझ में नहीं आता कि वो हमें कुछ चीज़ों से क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लाइक लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। मोस्ट ऑफ द पेरेंट, स्पेशली इफ यू आर गर्ल, सो योर पेरेंट सजेस्ट you to wear a full body covering cloth, and that's okay. I love that, wearing full dresses. I'm still wearing kurti in this video, so this is okay. This is not a very big deal or like ये। तो मम्मी पापा ने कुछ चीज़ बोल दी है तो हमें उसके बारे में 1-2 बार सोचना चाहिए, फिर उन्हें रिप्लाई देना चाहिए। इंस्टेंटली रिप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक अ पॉज, रीथिंक एंड देन रिस्पॉन्ड। डोंट रिप्लाई और रिएक्ट एनीथिंग इंस्टेंटली। उसी की वजह से मम्मी पापा के बीच और हमारे बीच एक दरार बनती जा रही। वो हमें कुछ बताने की ट्राई करते, लेकिन हम सुनने की टेंडेंसी में नहीं होते। सो रिलेशनशिप स्टेटस शुरू है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप, अट्रैक्शन मैटर। या सबको होता है, इट इज़ वेरी कॉमन। और कुछ झगड़े वगड़े हो जाने के सब खत्म नहीं हो जाता यार। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, you don't have to be take it very and this is our growing phase. Please be focused on your studies rather than these doing all those things stuff. I think you get it my point, what I wanted to say here. So keep yourself calm, composed and I am also very short tempered person, but I am trying to control myself. So this is the main reason when we get upset. And the last thing, fifth number thing is spirituality. Well, मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें लाइक मुझे भी इनिशियली स्पिरिचुअलिटी में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मम्मी ने कह दिया मंदिर जाओ तो जा रही हूँ, पूजा कर लो तो कुछ पूजा कर रही हूँ, ऐसे ही थी मैं भी। बट एज आई ग्रोन अप आई लर्न अबाउट द थिंग दैट हाउ इट प्रोवाइड्स मी इनर पीस, हाउ इट कूल डाउन माई माइंड and give me that energy to trust the process and work on it daily, and you will get the results, because trusting is the process. Well, I wanted to suggest you guys, you must have to enter into the spirituality. Trust me, this will going to help you in long term in your life. So this is the last message I wanted to give. So these are the 5 learnings that I wanted to give from my side. और आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे फ्रंट एज कैमरा पे बात कर रही हूँ तो ये फिर हेडफोन की क्या जरूरत। सो लेट मी टेल यू, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे बहुत नॉइसी एरिया है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस हेडफोन, और मेरे पास माइक वाइक है नहीं तो आई एम यूजिंग दिस। If you like my video, if you are new in my channel, so do like, share, subscribe to my video. And आप अपने ओपिनियंस बताओ कि मेरे वीडियो के बारे में या फिर अपने लाइफ के बारे में कितनी चीजें आप रिलेट कर पाए या फिर कितनी चीजें आपको अच्छी लगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।